Okay, so hello students, welcome to this lecture. So in this lecture, we will solve the remaining part of Punjab Master Cadre 2020 exam. Okay, so let's start the discussion. The first question is, which of the combination of crystal structure and their coordination number is correct? So body center cubic, face center cubic, diamond and hexagonal closed pack, इनके coordination numbers given है. तो पूछा है कि कौन सा इनमें से करेक्ट है. So let's check that. You know, in BCC, the coordination number is 8. In FCC, the coordination number is 12. In diamond, coordination number is 4. And in HCP, the coordination number is 12. और अगर आप सिंपल क्यूबिक का भी लिखना चाहें तो it is 6. Okay, so this is the coordination number 6, 8, 12, 4 and 12 for simple cubic, BCC, FCC, diamond and HCP. So now you can check कि कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है. तो बॉडी सेंटर क्यूबिक पे 12 गिवन है, दैट इज नॉट करेक्ट. फेस सेंटर क्यूबिक पे 6 गिवन है, दैट इज नॉट करेक्ट. डायमंड पे 8 गिवन है, दैट इज नॉट करेक्ट. एंड HCP पे 10 गिवन है, दैट इज नॉट करेक्ट. सो नन ऑफ द ऑप्शन इज एक्चुअली करेक्ट. सो इनमें से कोई भी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही नहीं है. जो सही आंसर है वो नीचे लिखा है हमने. सिंपल क्यूबिक के लिए 6, BCC 8, FCC 12, डायमंड 4, HCP 12. तो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम सॉलिड स्टेट बेसिक्स, जहां पे हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर और कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बात करते हैं कि हर एटम जो है वो कितने अदर एटम्स के द्वारा सराउंडेड है. ठीक है. सो नेक्स्ट इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑसिलेटर्स द एम्पलीट्यूड वेरीज विद टाइम. एम्पलीट्यूड वेरीज विद टाइम. सो देखो, अनडैम्प्ड ऑसिलेटर. अब अनडैम्प्ड एज नेम सजेस्टेड, अनडैम्प्ड, नो डैम्पिंग इज देयर, so there will be a constant amplitude like this, right? इस तरह के जो oscillations होंगे जो undamped होंगे किसी भी तरह से, उनका amplitude is not decreasing with respect to time, so they are undamped oscillator. so undamped oscillator का तो amplitude vary नहीं करता है with respect to time. then there is damped oscillator. तो damped oscillator is correct option. कि damped oscillator का जो amplitude है that decays reduced with respect to time like that. Okay, and the forced oscillator is also not correct here, क्योंकि forced oscillator means जहां से बाहर से कोई ड्राइविंग फोर्स अप्लाई हो रहा है, such that amplitude remains same. Okay, तो एम्पलीट्यूड इसमें भी सेम रहता है, वेरी नहीं करता है. फोर्स्ड ऑसिलेटर में बाहर से ड्राइविंग फोर्स अप्लाई करके एक्सटर्नल एजेंसी के थ्रू एम्पलीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट. सो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा डैम्प्ड ऑसिलेटर, ऑप्शन बी. ओके. The amplitude of which of the following variable tends to 0 both at very low and very high frequencies? So this is a straightforward question. So correct answer is velocity. आपने velocity का plot देखा होगा. So the plot of velocity looks like this. Okay, so high frequency और low frequency दोनों पे ही it tends to 0 और यहाँ पे इसकी resonance condition होती है. ठीक है. सो करेक्ट ऑप्शन इज वेलोसिटी. डायरेक्ट क्वेश्चन था. विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट रिलेटेड टू वेव्स इन ए स्ट्रिंग. वेव्स इन ए स्ट्रिंग के लिए कौन सी टर्म सही रिलेटेड नहीं है? इलास्टिक वेव्स, मैकेनिकल वेव्स, वन डायमेंशनल वेव एंड टू डायमेंशनल वेव. नाउ सी, इलास्टिक वेव, तो स्ट्रिंग कैन डिफॉर्म इलास्टिकली व्हेन डिस्प्लेस्ड and equilibrium follows Hooke's law. So elastic waves is the correct term related to the waves in a string. Mechanical waves, so mechanical waves is also correct because waves in a string are mechanical waves. Mechanical waves are those waves which require medium to travel. Okay, one dimensional wave ये भी सही है क्योंकि wave in a string is given represented by one dimensional waves because displacement of points are in one direction only. But two dimensional wave, that is not related with the waves in a string. तो टू डायमेंशनल वेव्स होती हैं सरफेस वेव्स. एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं सरफेस वेव्स हैं, वाटर वेव्स. ओके, so these are the two dimensional waves. Waves in a string is not
a two-dimensional wave. Okay, so option D is the correct option here. The field energy in a very good conductor is almost electric in nature, almost magnetic in nature, equally electric and magnetic, none of the above. देखो इस क्वेश्चन को दो तरीके से समझा सकता है. एक तो डायरेक्ट है कि इन ए वेरी गुड कंडक्टर यू नो सिग्मा टेंड्स टू इंफिनिटी और सिग्मा इज वेरी लार्ज, conductivity is very large and hence electric field is zero inside the conductor या electric field proportion is very less in a good conductor. तो यहां से आ गया कि field energy is because of the moving charges that is almost magnetic in nature. दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू यहां से ऐसे भी समझ सकते हो, इसी पेपर में हमने क्वेश्चन सोल्व किया था इंपिडेंस का कि इंपिडेंस इज गिवन बाय E by H रेशियो. ओके, दैट इज गिवन एज इंपिडेंस. सो E by H इन ए गुड कंडक्टर जो कि हमने कहा था जीरो है इन आइडियल कंडक्टर. आइडियल कंडक्टर में जीरो है तो गुड कंडक्टर में भी काफी कम होगा. बट इन केस ऑफ वैक्यूम हमने कहा था दैट इज 377 ओम, म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट अंडर द रूट, राइट. तो यहां पे आप देख सकते हो दैट इंपिडेंस E by H, द प्रोपोर्शन ऑफ E to H is very less. It means the proportion of magnitude of H to E is large in case of conductor. So the ratio of H to E is large, so that is mostly dominated by magnetic field. So that is why the option is almost magnetic in nature. Okay, so B option is correct here. दोनों ही तरीके से इसको समझा जा सकता है. Next is the DC current through each diode in a bridge rectifier equals half the DC load current, the load current, twice the DC load current, 1/4 the DC load current. तो देखो एक ब्रिज वेव रेक्टिफायर का हमने एक डायग्राम यहां पे लिया है. सो दिस इज अरेंजमेंट ऑफ 4 डायोड्स. दिस इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 डायोड्स एंड से जैसे कि अगर हम कहें कि पॉजिटिव साइकिल है, सो इफ यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव है, सो सी दिस साइकिल पॉजिटिव ऑन P नेगेटिव ऑन Q. तो जैसे यहाँ पे पॉजिटिव होगा सो दिस डायोड D1 it will conduct, it will be forward bias, and D3 because of the positive supply here, so these two will be activated and D4 and D2 they will remain reverse bias and will not open, will not conduct. Okay, so now you can see positive negative में जब ये जब साइकिल बन रहा है so again the current flow is in series through the load. ये load resistance है RL. So RL के through D3 and D1 are in series, so the current will remain same in D1 and D3. Similarly जब हम कहें कि नेगेटिव साइकिल होगी, जब नेगेटिव साइकिल होगी सो इन द नेगेटिव केस P इज नेगेटिव, Q इज पॉजिटिव. सो इन दैट केस जैसे यहाँ पे नेगेटिव होगा और यहाँ पे पॉजिटिव होगा सो D4 विल बी एक्टिवेटेड एंड D2 विल बी एक्टिवेटेड. हाउएवर D2 एंड D1 and D3 will be not activated, so D4 and D2 will conduct in that case. So again you can see कि RL के साथ D4 and D2 they are all again in series. तो जब भी conduct हो रहा है in that case both the diodes are in series with RL और series में current will remain same as across the RL. Okay, so the correct option will be the load current. तो यहाँ से डायरेक्ट आप समझ सकते हैं. इसको मैं थोड़ा और डिटेल में दोनों कोशिश दोनों जो साइकिल्स हैं पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव करके यहाँ पे डिस्कस किया है. अदरवाइज डायरेक्टली आप यहाँ से ही देख सकते थे. एक बार पॉजिटिव करके बोथ डायोड्स विल बी इन द सीरीज, देन रिमेनिंग 2 डायोड्स विल बी इन सीरीज. सो आंसर विल बी द लोड करंट. इट विल बी इक्वल टू द लोड करंट. द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू लार्ज सिस्टम्स ओनली, स्मॉल सिस्टम्स ओनली, subatomic particles only, both subatomic and large system. It is a very good question. देखो अब यहां पे हमें क्या ध्यान रखना है, पूछा कि applicable to. अब दो वर्ड्स यहां पे इंपॉर्टेंट है कि applicable पूछा है कि हमें ऑब्जर्व होता है वो पूछा है. अब applicable की बात करें तो uncertainty principle is applicable on both subatomic and large system, means on every particle, that is both subatomic and large system. हर सिस्टम पे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लीकेबल होता है, लेकिन द इफेक्ट इज विजिबल, द इफेक्ट इज नोटिसेबल इन द सबएटॉमिक पार्टिकल्स ओनली, इन द स्मॉल सिस्टम्स ओनली. ओके, सो जो इफेक्ट है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का दैट इज ऑब्जर्व्ड इन द सबएटॉमिक पार्टिकल्स ओनली,
लेकिन अगर अप्लीकेबिलिटी की बात की जाए तो वो दोनों पे ही है। लेकिन जो लार्ज सिस्टम्स हैं उनमें अप्लीकेबल क्यों नहीं होता, उनमें क्यों दिखता नहीं है, क्यों ऑब्जर्व नहीं होता, क्यों इतना इफेक्टिव नहीं है? बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ एच, दैट इज नियरली 10⁻34। ओके, तो इस वजह से जब हम इस उनमें अनसर्टेनिटी देखेंगे लार्ज सिस्टम्स के लिए, डेल्टा एक्स डेल्टा पी, सो दैट विल बी वेरी वेरी स्मॉल यूनिट, सो दैट इज नॉट नोटिसेबल। इसीलिए जब इसका डिस्कशन करते हैं तो हम करते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स में जिनका साइज छोटा होता है। लेकिन अगर अप्लीकेबिलिटी की बात करें कि भाई अप्लीकेबल है कि नहीं, तो वो दोनों सभी सिस्टम्स पे होता है, सब एटॉमिक हो या लार्ज सिस्टम हो। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। This question is very easy. A voltage will influence current only if the circuit is, very very basic question, that is closed circuit. जब भी circuit close होगा only then voltage will influence current. अगर circuit open होगा so there will be no effect of it. Okay. To describe a dynamic system we must have the knowledge of. Simply पूछा है कि किसी भी dynamic system को अगर हमने डिफाइन करना है, उसकी स्टेट को डिफाइन करना है, तो हमें कौन से पैरामीटर चाहिए? क्या पोजीशन स्पेस ओनली, मोमेंटम स्पेस ओनली, बोथ पोजीशन एज वेल एज मोमेंटम स्पेस, नन ऑफ द अबव? सो ऑप्शन विल बी बोथ पोजीशन एज वेल एज मोमेंटम स्पेस, एक्स एंड पी। दिस इज द क्लासिकल स्टेट ऑफ सिस्टम, दैट इज पोजीशन एंड मोमेंटम। तो बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम हमें चाहिए फॉर एनी डायनेमिक सिस्टम, और ये हमने डिस्कशन भी किया है काफी अच्छे से डिटेल में लेक्चर्स में। फेज स्पेस इज, फेज स्पेस ये क्वेश्चन भी उसी से रिलेट करके ही पूछा गया है। जैसे आपको पोजीशन एंड मोमेंटम की नॉलेज हुई यहाँ पे, उससे नेक्स्ट क्वेश्चन ये फेज स्पेस इज 4 डायमेंशनल, 6 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। सो फेज स्पेस इज 6 डायमेंशनल, जहां पे 3xyz एंड px py pz, 3 पोजिशन कोऑर्डिनेट्स, 3 position coordinates and 3 momentum coordinates and 3 momentum coordinates. Okay, so total 6. और जब लेक्चर में हमने जब डिस्कशन किया है तो म्यू स्पेस, गामा स्पेस फॉर एन पार्टिकल, सब कुछ उसमें डिटेल में डिस्कशन किया है कि कितने डायमेंशनल का स्पेस होता है। बट यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही इजी, बिल्कुल एलिमेंट्री फेज स्पेस से पूछा है कि फेज स्पेस का डायमेंशन क्या है, दैट इज 6 डायमेंशनल स्पेस। ओके, the color of the star indicates weight, size, distance, temperature. So color of the star indicates the temperature. देखो इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, क्योंकि जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन हमने पढ़ा था तो उस पर हमने एक लेक्चर डिस्कस किया था, डेडिकेट किया था। वहां पे हमने वेन्स लॉ में लिखा था लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू b/t। बी की वैल्यू थी 2.897 इंटू 10⁻³ दिस। नाउ सी, ये हमने देखा था और एक प्लॉट भी हमने किया था, तो जहां से पता चला कि टेम्परेचर के साथ कोई भी ब्लैक बॉडी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब हीट की जाती है तो जो लाइट इमिट होती है उसकी वेवलेंथ क्या है। तो जो भी लाइट इमिट होती है उसकी वेवलेंथ क्या है, दैट इज गिवन बाय दिस वेन्स लॉ, राइट। नाउ यहां पे भी कलर ऑफ द स्टार, तो कलर ऑफ द स्टार मींस कौन सी लाइट आपको ऑब्जर्व हो रही, कौन सी लाइट कोई स्टार जो वो इमिट कर रहा है, दैट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ दैट बॉडी। ये तो हो गया है एक आइडियल एग्जांपल। एक रियल लाइफ एग्जांपल आप इस चीज का देख सकते हो, कलर ऑफ द स्टार, कलर ऑफ द एनी लाइट इमिटिंग बॉडी से भी आप इसको समझ सकते हो। आप अपने घर में कोई भी लाइट सोर्स देखिए, मोस्ट प्रैक्टिकल लाइट सोर्स जो आपके पास इजीली अवेलेबल होगा वो कोई भी एक ट्यूब लाइट होगी, राइट। एक जो ट्यूब लाइट होती है वो आपके घर में, सभी के घर में होगी, आप उसको देख सकते हैं। उस पे अगर आप क्लोजली देखोगे, उसके बॉक्स पे या उसके नंबर पे, उसके बॉडी पे आपको एक नंबर दिखेगा। इट मे बी 3000 केल्विन, इट मे बी 3500 केल्विन, इट मे बी अगर आपके पास कोई और हाई क्वालिटी लाइट है, कोई सीलिंग लाइट है, तो दैट में भी 5700 केल्विन, ऐसा उसके ऊपर लिखा होता है। इसको बोला जाता है कलर टेम्परेचर। इसको क्या बोला जाता है? कलर टेम्परेचर। आप देखना है जरूर, ये एक एक्सरसाइज है अपार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन। तो एक तो कलर टेम्परेचर है, ये क्या बताता है? ये हर एक सेगमेंट का अलग अलग होता है। नॉर्मली आप देखोगे तो
जो नॉर्मल ट्यूबलाइट्स होंगे उनका इतना मिलेगा आपको 3000 3500 ऐसा, जो पैनल्स होंगे उनका आपको दिखेगा 5700 केल्विन। तो सिंपली ये टेम्परेचर यही बताता है कि अगर ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर इतना होता तब जो लाइट इमिट होती वही लाइट ये डिवाइस इमिट कर रहा है, उतनी लाइट, उसी वेवलेंथ की, उसी फ्रीक्वेंसी की, उसी रीजन की लाइट ये वाला डिवाइस इमिट कर रहा है। और आप देख सकते हो कि एक स्पेक्ट्रम होता है टेम्परेचर का, जहां पे आप देखोगे कि लोअर साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे येलो टोन होती है, हाई साइड पे जाओगे तो यहाँ पे ब्लू टोन होती है, ब्लू कलर की, और बीच में कहीं नियरली 5700 केल्विन को एक डे लाइट बोला गया है, डे लाइट टोन होती है वो। ठीक है, तो इसकी रेंज नियरली 5000 से 6000 केल्विन की जो रेंज होती है वो डे लाइट टोन होती है। इसके इधर जाओगे तो येलोइश मिलती है, इसके ऊपर जाओगे तो ब्लूइश मिलती है। तो ये जो कलर टेम्परेचर है, ये कॉन्सेप्ट मैंने एक बताया है यहाँ पे कि कलर ऑफ द स्टार इंडिकेट्स टेम्परेचर, और इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल आप अपने आसपास देख सकते हो जहां पे ये कलर टेम्परेचर मेंशन करता है कि ये वाली लाइट है, ये कैसी वेवलेंथ, कैसे रीजन में लाइट इमिट करेगी। तो ये आप देख सकते हो कि जो ये वाली जो ट्यूब लाइट है, इसकी जो लाइट और ये वाली जो है, इसमें आपको डिफरेंस दिखेगा। इट विल बी सिमिलर टू और वेरी क्लोज टू ए डे लाइट इन प्रैक्टिकल पर्पजेज, और ये थोड़ी इससे लोअर साइड पे होती है। ठीक है, तो ये आप देखना इसके बारे में। सो आंसर विल बी कलर टेम्परेचर। द नेक्स्ट इज कॉम्पटन शिफ्ट डिपेंड्स ऑन एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, एंगल ऑफ स्कैटरिंग, मटेरियल ऑफ टारगेट। तो देखो कॉम्पटन शिफ्ट क्या है, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कोस थीटा, ये होता है कॉम्पटन शिफ्ट। यहां से आप देख सकते हो क्या एनर्जी की कोई वैल्यू, कोई पैरामीटर है, नो, फ्रीक्वेंसी नो, एंगल ऑफ स्कैटरिंग थीटा यस, मटेरियल ऑफ टारगेट नो। सो एंगल ऑफ स्कैटरिंग पे डिपेंड करता है, इस ऑप्शन से ये, इस फॉर्मूला से ये ऑप्शन सही हो जाएगा, दैट इज एंगल ऑफ स्कैटरिंग। The next is the probability density of a state is always, very easy question from the quantum mechanics कि probability density of a state, अगर कोई wave function psi हमें given है, then mod psi square is always a real quantity which represents the probability density. Okay, so it will be real. Probability density of a state is always real because it will be psi star psi mod psi square. The wavelength of matter wave is independent of, तो matter wave से confuse नहीं होना, matter wave is the de Broglie wave associated with a particle, wave particle duality से क्वेश्चन है कि wavelength of a matter wave is given by, so wavelength of a matter wave is lambda is equal to h upon mv, या इसको कहें h upon p, ये होता है। अब देख लो वेवलेंथ किस पे डिपेंड है, किस पे इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट हमसे पूछा है तो मास पे तो डिपेंड है, तो गलत हो गया, वेलोसिटी पे भी डिपेंड है, मोमेंटम पे भी डिपेंड है, चार्ज कहीं नहीं है, तो इसलिए इंडिपेंडेंट के केस में चार्ज इज दी करेक्ट ऑप्शन। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन इज फ्रॉम न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। सो न्यूक्लियर फोर्स इज, अब न्यूक्लियर फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक से क्वेश्चन है कि न्यूक्लियर फोर्स रेंज वाइज कैसे होते हैं और चार्ज वाइज कैसे होते हैं। तो ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन से ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। आपको पता है कि न्यूक्लियर फोर्सेस जो हैं वो शॉर्ट रेंज फोर्सेस होते हैं, इनसाइड द न्यूक्लियस एक्ट करते हैं, और दे आर चार्ज इंडिपेंडेंट, दे आर चार्ज इंडिपेंडेंट, चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी वही न्यूक्लियर फोर्स लगता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के भी, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में भी, न्यूक्लियंस के बीच में ये फोर्स होता है, इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। In a nucleus with even n and odd z, the ground state spin of the nucleus is determined by, कि अगर किसी भी न्यूक्लियस में even n हो और odd z हो, even n हो और odd z हो, तो ग्राउंड स्टेट की स्पिन कैसे कैलकुलेट करते, सिंपली यही पूछा है, आइडिया पूछा है। हमने तो खूब सारे ऐसे एग्जाम्पल किए, न्यूक्लियर स्पिन्स कैलकुलेट किए हैं यूजिंग द शेल मॉडल। तो आपको पता है जो ओड न्यूक्लियन होता है दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल। तो यहाँ पे ओड जेड है, प्रोटॉन ओड है, इवन एन, न्यूट्रॉन्स इवन है। अगर उल्टा होता तो जो भी ओड होता है, चाहे दोनों ओड हो चाहे एक ओड हो, ओड न्यूक्लियन होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है न्यूक्लियर स्पिन के लिए। तो इसका मतलब लास्ट ओड प्रोटॉन इज द करेक्ट आंसर।
लास्ट ओड प्रोटॉन। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ द रेडियो एक्टिव इमीटर हैज द लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ? अब देखो, अल्फा इमीटर, बीटा इमीटर, गामा इमीटर, नन ऑफ द अबव। अब ये क्वेश्चन देखो बड़ा ध्यान से हमें समझना पड़ेगा कि लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ हमसे पूछिए डिपेंडिंग अपॉन दी टाइप ऑफ स्पीसीज ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, की अगर अल्फा इमीटर है, बीटा इमीटर है, गामा इमीटर है, तो लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ किसकी होगी। लेकिन लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ का आइडिया हम डायरेक्ट इस बात से नहीं लगा सकते हैं कि अगर अल्फा इमीटर है तो उसकी हमेशा ज़्यादा ही होगी, बीटा है तो उसकी कम ही होगी, या गामा है तो उसकी ज़्यादा ही होगी। ये पैरामीटर सही नहीं है कि सिर्फ स्पीसीज देख के हम ये नहीं बता सकते कि लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ इसकी होगी। कारण समझो, अगर हम अल्फा इमीटर्स की बात करें, फॉर एग्जाम्पल अल्फा इमीटर्स में से यूरेनियम 238 है, इसकी जो हाफ लाइफ है दैट इज नियरली 4.5 बिलियन ईयर्स। ओके, और रेडॉन है जो, इसकी नियरली 3.8 डेज। ठीक है, अगर हम बीटा मीटर में कोई एग्जांपल समझें, जैसे एक एग्जांपल हम समझ रहे हैं कि इस ये जो पैरामीटर है सही क्यों नहीं है। ठीक है, कार्बन 14 है, दैट इज 5730 ईयर्स। और अगर हम 1H3 की बात करें 12.3 ईयर्स। आयोडीन की बात करें 15.7 मिलियन ईयर्स। सिमिलरली अगर हम गामा की बात करें, गामा सोर्स की बात करें, सो गामा सोर्स कोबाल्ट 61 5.27 ईयर्स हैं। सीजियम है 137 30 ईयर्स है। अब देखो हर तरह की पॉसिबिलिटी यहाँ पे, भाई अल्फा इमीटर जो है इसकी कम भी है इनसे, इनकी ज्यादा भी है इससे। गामा जो है अल्फा से ज्यादा भी दिख रहा है, अल्फा से कम भी दिख रहा है। तो आप कैसे अंदाजा लगाओगे कि किस इमीटर के बारे में पूछा है। तो यहाँ पे ये स्पेसिफिकेशन सही नहीं है कि हाफ लाइफ किसकी ज्यादा होगी डिपेंडिंग अपॉन द अल्फा बीटा गामा। अगर ऐसा पूछना है तो उनको स्पेसिफिक कुछ देना पड़ेगा, तभी हम ये बता सकते हैं। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन होगा नन ऑफ दी अबव। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन डिटेक्टर यूजेज फोस्फोरस इन इट? फोस्फोरस का अल्टीमेटली मीनिंग ही सिंटिलेशन है, कि विच प्रोड्यूसेस लाइट। तो ये जो जीएम काउंटर है, प्रोपोर्शनल काउंटर, दीज आर द गैस फिल्ड चैम्बर्स। हाउएवर द सिंटिलेशन काउंटर, इनके अंदर ऐसा मटेरियल होता है जब उसमें कोई इनकमिंग रेडिएशन आती है, एक्साइटेशन करती है, एंड इट डी एक्साइट वाया सम पाथ एंड दे इमिट scintillation pulses. So scintillator detector will be the correct option for this. Particles that participate in strong interaction are called neutrinos, hadrons, leptons and electrons. तो इन्होंने ओवरऑल ही काफी इजी क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया है। एग्जैक्टली इंटरमीडिएटिंग पार्टिकल नहीं पूछा है, पार्टिकल फिजिक्स लेवल पे जाके सिंपली कैटेगरी ऑफ पार्टिकल्स में से पूछ लिया। देखो न्यूट्रिनोज, लेप्टॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ये तीनों तो एक ही फैमिली के हैं, यू नो दिस। हेड्रॉन्स के अंदर होते हैं मीजॉन्स एंड बेरियॉन्स, मीजॉन्स एंड बेरियॉन्स। एंड हेयर कम्स द पार्टिकल्स विच पार्टिसिपेट इन द स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। मीजॉन थ्योरी के बारे में आपने पढ़ा है, तो मीजॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल वन हेयर। तो ये तो तीनों न्यूट्रिनो हैं, लेप्टॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये तो लेप्टॉन्स ही हैं अल्टीमेटली। सो हेड्रोन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब अगर इनमें और डिस्कशन करना है तो थोड़ा सा कर सकते हैं। मीजॉन्स में जो बोजॉन्स आते हैं, क्वार्क स्ट्रक्चर अगर देखें तो एक क्वार्क एक एंटी क्वार्क से मिलकर बना होता है। बोजॉन जो हो एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क से मिलकर बना होता है। बेरियॉन्स हैं, ये 3 क्वार्क से मिलकर बने हैं। ठीक है, दे आर फर्मियॉन्स, बेरियॉन्स आर फर्मियॉन्स एंड मीजॉन्स आर बोजॉन्स। ओके, तो जो एंटी बेरियंस होंगे वो 3 एंटी क्वार्क से मिलकर बनेंगे, लेकिन एंटी बोजॉन होंगे वो क्वार्क और एंटी क्वार्क से ही होंगे, क्योंकि जो क्वार्क है वो एंटी क्वार्क हो जाएगा, एंटी क्वार्क वो क्वार्क हो जाएगा। सो ये एंटी पार्टिकल्स में होता है। आंसर विल बी हेड्रोन हेयर, सिंपल। नेक्स्ट इज मैटर वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल, EM waves travel with speed of light, show diffraction. So simple answer, that is show diffraction, because matter waves are the waves associated with the particle
दैट इज डी ब्रोगली वेव्स। तो वो लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स उस पर हम कमेंट नहीं कर सकते, ईएम वेव नहीं होती हैं, और ईएम वेव नहीं है तो दे कैन नॉट ऑलवेज ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। इट डिपेंड्स कि उनकी स्पीड क्या होगी, उनकी वेलोसिटी क्या होगी, फेज वेलोसिटी क्या होगी, ग्रुप वेलोसिटी क्या होगी, वो डिपेंड करेगा कि पार्टिकल की स्पीड क्या है। तो दे ऑलवेज नॉट ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएंगे और सही आंसर होगा इट शो डाइफ्रैक्शन, क्योंकि मैटर वेव्स आर द क्वांटम मैकेनिकल डिस्क्रिप्शन, they are not longitudinal or transverse in that sense. Okay, so interference and diffraction they can show, so that is why option D is correct one. इसी से रिलेटेड देखो, एक ही टॉपिक से रिलेटेड एक टॉपिक है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। इसी से एक क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, दूसरा क्वेश्चन ये रहा मैटर वेव से एसोसिएटेड, और तीसरा ये रहा ऑफ द फॉलोइंग मूविंग विद द सेम वेलोसिटी विच वन हैज लार्जेस्ट वेवलेंथ। देखो अगर वेवलेंथ स्पीड सेम है तो वेवलेंथ किसकी ज्यादा होगी, जिसका मास कम होगा, जिसका मास सबसे कम होगा, क्योंकि एच तो कांस्टेंट। अब देख लो वेवलेंथ उसी की लार्जेस्ट होगी जिसका एम सबसे कम है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का ही सबसे कम है, इलेक्ट्रॉन से हैवी प्रोटॉन, प्रोटॉन से हैवी न्यूट्रॉन, और फिर अल्फा पार्टिकल आता है 2 हीलियम 4 का न्यूक्लियस। सो इलेक्ट्रॉन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसका मास सबसे कम होगा तो वेवलेंथ इसके साथ एसोसिएटेड होगी वो ज्यादा होगी। तो जितना हैवी पार्टिकल होगा उसके साथ वेवलेंथ एसोसिएटेड विल बी लेस। द अनसर्टेनिटी रिलेशंस कैन नॉट होल्ड फॉर द फॉलोइंग पेयर्स। द अनसर्टेनिटी रिलेशन दैट इज हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है फॉर सर्टेन पेयर्स की इन क्वांटिटीज को we cannot measure precisely, we can measure them into a specific limit, so that is the uncertainty principle. तो पोजीशन मोमेंटम में अनसर्टेनिटी रिलेशन होल्ड होता है एनर्जी एंड टाइम में होता है, एंगुलर मोमेंटम एंड एंगल में भी होता है, लीनियर मोमेंटम एंड एंगल दिस इज नॉट पॉसिबल, यहां पे नहीं होता है। देखो पोजीशन मोमेंटम में क्या है, डेल्टा एक्स डेल्टा पी नियरली एच कट, delta E delta T nearly h cut, that is the energy time, and similarly delta L delta phi nearly h cut। तो ये हो गया एंगुलर मोमेंटम एंड एंगल के बीच में। तो लीनियर मोमेंटम और एंगल यहाँ पे सही नहीं है, इसके लिए होल्ड नहीं करता है। तो एक तरीका तो यही था। दूसरा, अगर ये ध्यान नहीं रहता उस टाइम पे तो आप एक थोड़ी एनालॉजी भी यहाँ पे देख सकते हो। देखो पोजीशन मोमेंटम और एनर्जी टाइम ये तो फिक्स है, ये तो सभी को पता होगा, किसी को कंफ्यूजन है तो वो यहाँ पे होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एंगुलर मोमेंटम एंड एंगल दे आर इन द सेम डोमेन, एंगुलर डोमेन। हाउएवर लीनियर मोमेंटम एंड एंगल वन इज इन द लीनियर फॉर्म, वन इज इन द एंगुलर फॉर्म। तो यहाँ पे ये जो पेयर है ये सही नहीं है, सिमेट्रिकल नहीं है एज कंपेयर टू दिस वन। तो यहाँ से एक वाइज गैस आप कर सकते हो अगर आपको नहीं पता है, लेकिन एग्जैक्ट ऑप्शन इज आंसर इज दिस वन कि इनके लिए ये रिलेशन होल्ड होते हैं, लीनियर मोमेंटम और एंगल के लिए नहीं होता है। इवन फेज एंड पार्टिकल नंबर के बीच में भी आप लिख सकते हो कि फेज और पार्टिकल नंबर के बीच में भी अनसर्टेनिटी रिलेशन जो है वो होल्ड करता है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज लेजर एक्शन इज मोस्ट इफिशियंट इन 2 level system, 3 level system, 4 level system, all of the above। वेरी इजी क्वेश्चन। 2 level system में तो लेजिंग एक्शन होता ही नहीं है, पॉपुलेशन इन्वर्जन की प्रॉब्लम है। 3 level system में हो सकता है, लेकिन अगर 3 और 4 को कंपेयर करें तो यू नो कि 4 level system इज मोस्ट इफिशियंट, क्योंकि बीच में एक मेटास्टेबल स्टेट आती है और उसके बाद हम ट्रांजिशन देखते हैं। तो जब हमने हीलियम नियोन लेजर पढ़ा था वहां पे 4 level system, 3 level system इनके बारे में अच्छे से डिस्कशन किया है। तो डायरेक्ट आंसर है इसका, दैट इज 4 level system इज द मोस्ट इफिशियंट वन, क्योंकि पॉपुलेशन इन्वर्जन इज द मस्ट कंडीशन। पॉपुलेशन इन्वर्जन इज द मस्ट कंडीशन, और उसका मतलब है कि नंबर ऑफ एटम्स इन द हाई स्टेट विल बी मोर देन द नंबर ऑफ एटम्स इन द लोअर स्टेट। सो दैट पॉपुलेशन इन्वर्जन इज ए मस्ट नीडेड कंडीशन। तो 2 level system में तो लेजिंग एक्शन होगा ही नहीं। 3 level में होता है, कुछ लेजर्स हैं जो 3 level system में एग्जिस्ट करती हैं, बट अगर इफिशियंसी की बात आती है तो 4 level system इज द मोस्ट इफिशियंट। इन हीलियम नियोन लेजर, देखो अब लेजर से इन्होंने पहले 4 level ले लिया है, उसके बाद उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इन हीलियम नियोन लेजर द लेजिंग ट्रांजिशन टेक्स प्लेस इन,
अब लेजिंग ट्रांजिशन किस में होती है? नियोन में होती है, हीलियम में होती है, दोनों में होती है, किस में होती है? देखो, लेजिंग एक्शन होती है नियोन में, ठीक है, और हीलियम और नियोन का जो रेशियो है दैट इज 10:1। 10:1 में हीलियम और नियोन होते हैं। तो आप सोचेंगे कि हीलियम का काम क्या है? हीलियम का काम है टू अचीव द पॉपुलेशन इन्वर्जन इन नियोन। नियोन में लेजिंग एक्शन होना है, इसका मतलब नियोन के एटम्स हायर एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा होने चाहिए, तो नियोन को ऊपर भेजने के लिए हीलियम इज यूज्ड। तो अगर तो ये पूछा जाए कि पॉपुलेशन इन्वर्जन किसकी वजह से होता है, पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज हीलियम। लेकिन लेजिंग एक्शन किस में होता है, दैट इज नियोन, और हीलियम नियोन 10:1 में होती है। इट इज ए गैस लेजर, इट इज ए गैस लेजर एंड इफिशिएंट लेजर। ओके, तो ऑप्शन ए एनर्जी लेवल ऑफ नियोन। जब लेजिंग लेजर का जो चैप्टर हमने पढ़ा है उसमें भी हमने हीलियम नियोन के एनर्जी लेवल डायग्राम भी बनाए हुए हैं, वहां भी आप देख सकते हैं कि नियोन के अंदर जब ट्रांजिशन होती है हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर में, वहां पे लेजिंग एक्शन होता है, ना कि हीलियम में। हीलियम हेल्प करता है नियोन को पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करने में। नेक्स्ट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड लेजर फॉर प्रिसाइज मेजरमेंट इज, दैट इज हीलियम नियोन लेजर। डायरेक्ट क्वेश्चन, हीलियम नियोन लेजर। ओके, सो ये क्वेश्चंस हैं of the remaining part. So this completes the solution of Master Cadre 2020 exam. So questions I would say कि easy हैं, one liner और कोई क्वेश्चन 2 लाइन में जाके हो रहा है, बट स्कोरिंग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और however in the latest exam you see कि क्वेश्चन थोड़े से एडवांस पूछे गए हैं, बट स्टिल यू कैन सी कि आपसे एक लॉजिकल क्वेश्चन है ये, ऐसे वेग क्वेश्चंस तो नहीं है। अगर आप इससे भी प्रीवियस ईयर्स में देखोगे तो काफ़ी वेग क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनको अटेम्प्ट करना थोड़ा टफ होता है। यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो ऐसे हैं कि एलिमेंट्री हैं लेकिन लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सो दैट इज़ अ गुड थिंग फॉर द स्टूडेंट्स कि आपसे जो चीज़ पूछी जाए वो लॉजिकल हो, वो टू द पॉइंट हो। ऐसी वेग थ्योरेटिकल चीज़ें ना पूछी जाएं जिनको आप या तो सुना ही ना उनके बारे में, या ऐसा है कि भाई अब इसका क्या करें, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन पेपर वाज गुड फॉर द स्कोरिंग पॉइंट ऑफ व्यू। फिर भी कोई डाउट है, अगर आपको इसमें किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट आया हो, सॉल्यूशन में ऐसा लगता हो, तो प्लीज फील फ्री टू डिस्कस, वी कैन डिस्कस दैट। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। बाय बाय, हैव ए गुड टाइम।